بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ درس نظامی کورس کے فرسٹ سیمسٹر میں ہم تفصیل الصرف پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 37 سے پڑھیں گے۔ یہ 36 ہو گیا تھا ہمارا مضاعف کا بیان۔ مضاعف کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا، اور یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں آپ نے پڑھا کہ دو ہم جنس حروف کسی کلمے میں اکٹھے آ جائیں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ تو یہ آگے جی آج کے سبق میں کچھ گردانے ہیں، اور ان گردانوں کو آپ نے خود یاد کرنا ہے۔ یہ سبق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور گردانیں نظر آ رہی ہیں۔ اس میں سمجھانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، صرف آپ نے رٹا لگانا ہے اور یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے نوک زبان کرنا ہے۔ یہ گردان ہے جی ثلاثی مجرد کے ابواب یہاں لکھا ہوا ہے، اور باب ناصرہ ینصرو سے اس کی گردان بنے گی مدہ یا مدو مدن، مدد کرنا۔ دارابا یدربو سے ہے فرا یا فرو فرارن، بھاگنا۔ اور سامیہ یسمعو سے بنے گی جیسے مسا، اصل میں ماسی سا تھا، مسا یا مسو مسن، چھونا، مسا یا مسو مسن، چھونا۔ تو اس میں جو ہے نا آگے کہتے ہیں کہ قلیل طور پر مضاف ثلاثی باب کاروما یکرمو سے بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں بہت کم سیغے ہیں کہ کاروما یکرمو سے بھی مضاف کے سیغے ہیں، اور جیسے یہ ایک انہوں نے گردان دی ہے، جیسے حبا اور یا حبو، حبن اور محبتاً، یہ بھی ایک مصدر ہے۔ اسی طریقے سے لبا یا لبو لبن، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی آتے ہیں بھائی۔ تو آگے جی یہ صرف صغیر اس کی کھلی ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، مدہ یا مدو مدن، فہوا مادن و مدہ یمدو مدن فضا کا ممدودن۔ یہ گردان ہے آپ کے سامنے، یہ گردان آپ پوری یاد کریں گے اچھے طریقے سے۔ کتابیں آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ نوک زباں کریے گا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، اور یہ صرف کبیریں بھی ہیں بھائی۔ یہ مدہ یہ زیادہ استعمال یہ ہوتی ہے تو مدہ کی گردان ہے ماضی کی، اور یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے 2-4 لکھ دی ہیں جو زیادہ استعمال ہونے والی تھیں۔ تو یہ گردان جناب میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کے ویسے سامنے کھلی ہے۔ مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا۔ اسی طریقے سے اس کی مجہول بنے گی مدہ مدہ مدو، اور مضارع معروف بنے گی یا مدو اور یا مدو یا مدانی یا مدونا تا مدو تا مدانی یم ددنا، ٹھیک ہے جی، یم ددنا۔ یہ گردان آگے آپ پوری کریں، ساری اچھے طریقے سے نکالیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، یہ انہوں نے یہ اوپر یہ دیکھیں مدہ کے ساتھ ایک حاشیہ لکھا ہے 1، اور یا مدو کے ساتھ حاشیہ نمبر 2۔ یہ نیچے یہ حاشیے ہیں، یہ بھی آپ پڑھیے گا۔ یہ انہوں نے یہ بات وہی کی ہے جو پہلے ہم نے مضاف کے صیغوں میں تعلیل کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے یہاں یہ بتایا کہ یہاں تعلیل کیسے ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ یہ رپیٹ کرنے والی کوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ پہلے پڑھ چکی ہیں، اس لیے میں یہاں رپیٹ نہیں کروں گا۔ آگے بڑھیں، اور یہ گردانے ہیں بھیا، اس کو آپ کریں۔ یہ صرف کبیرے ہیں، آپ کے سامنے کھلی ہے، اچھے طریقے سے اس کو کریے گا۔ ان کے جو حاشیے ہیں وہ چاہے کریں یا نہ کریں، لیکن یہ گردانیں آنی چاہیے۔ یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو گردان آنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ ضرور آنا چاہیے کم از کم۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کو جو ہے اگر تعلیل نہیں بھی آتی تو گزارا ہو جاتا ہے، تعلیل نہیں بھی آتی تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن گردان تو کم از کم آئے، اس کو سیکھا تو پتہ ہونا چاہیے بچے کو، اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ لیکن جب تعلیل آئے گی یا وہ قاعدے کلیے کے ساتھ آئے گا تو پھر تو اور ہی مزہ آ جائے گا نا،
सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आनी चाहिए। आगे बढ़ें भाई, ये भी गर्दाने हैं, ये इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल की गर्दाने, अमर नहीं नहीं की गर्दाने हैं। तो ये सारी गर्दाने आप करने की कोशिश करें, अल्लाह ना करे आपको याद ना भी हों तो इतनी टेंशन ना लीजिएगा। बस ऐसा ऐसा जो है ना ये करते रहें थोड़ी थोड़ी, और अपने तय ये करते रहें। नीचे ये जो है ना इसमें फ़ाइल के इन्होंने सीगे दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि मादुन, यानी इसमें फ़ाइल का सीगा आता है मादुन, मादानी मादूना, मादातुन मादातानी मादातुन, ये मुन्नस के सीगे हैं। इसमें मफूल के सीगे ये देखें जी, ममदूदुन ममदूदानी ममदूदूना ममदूदातुन, और ममदूदातानी ममदूदातुन। ठीक है जनाब। अब नीचे ये नोट है, और ये नोट आपको ये बता रहे हैं कि मादुन जो है ना ये असल में क्या था कि मादीदुन, फ़ाइलुन के वज़न पर, फ़ाइलुन के वज़न पर मादीदुन था। चूँकि पहली वाओ का मा कबल हरफ मद्दा है, लिहाजा इसकी हरकत को हज़फ करके दूसरी वाओ में इदगाम किया। यहाँ दो साकिन जमा है और दो साकिनों का इज्तिमा नाजायज़ है। इज्तिमा साकिनैन मना होता है भाई, ये ज़हन में रखिएगा। यानी दो साकिन नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते कि यानी दो रफ साकिन कर दिए जाए, ऐसा नहीं होता। मगर यहाँ जायज़ है, कहते हैं कि लेकिन इज्तिमा साकिनैन तो जायज़ नहीं है, लेकिन मगर यहाँ जायज़ है क्योंकि यहाँ पहला साकिन मद्दा और दूसरा मुदगम और इज्तिमा एक कलमा में है, और ये जायज़ है। और इसको इज्तिमा साकिनैन अला हद्देही कहते हैं। ये भाई नाम ज़हन में रख लें कि एक ही हरफ में, एक ही कलमे में हो, इज्तिमा एक ही कलमे में हो, और इज्तिमा साकिनैन इस तरीके से आ जाए कि उसके माँ कबल मद्दा हो, उसके माँ कबल मद्दा हो, तो उसको कहते हैं इज्तिमा साकिनैन अला हद्देही। और अगर दो साकिनों का इज्तिमा दो कलमों में हो, दो मुख्तलिफ दो कलमे, दो मुख्तलिफ कलमों में हो, पहला साकिन मद्दा और दूसरा मुदगम ना हो तो नजायज़ है, ये नजायज़ है ये तरीका। और इसे इज्तिमा साकिनन अला गैर हद्देही कहते हैं। जैसे ये देखें कुलिल हक्कु, कुलिल हक्का, कुलिल हक्का, तो यहाँ जो है ना ये देखिए ये कुल का लाम जो है ये साकिन था, और अल हक का लाम भी साकिन। तो यहाँ इज्तिमा साकिनैन तो हुआ है, लेकिन ये दो अलग अलग कलमे हैं, इसी वजह से यहाँ इज्तिमा साकिनैन नजायज़ था। तो इस लाम साकिन को ज़ेर दे के आगे मिला दिया, कुलिल हक्का कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ इज्तिमा साकिनैन नजायज़ था। आगे आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं, ये रुबाई है, और रुबाई के मुदाफ़ के जो सीगे होते हैं वो भी यहाँ आपको बयान करेंगे। और ये बहरहाल ये जो है ये आप कर ले अच्छे तरीके से। ये मैं पढ़ूँगा तो नहीं, हमारे पास वक़्त भी शॉर्ट है, और ये तो सिर्फ याद करने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आप ये ज़लज़ला युज़लज़िलु ज़लज़लतन फ़हुवा मुज़लज़िलुन, तो ये गर्दाना आप करें अच्छे तरीके से ज़लज़ला की। और आगे बढ़ते हैं हम, ये नीचे भी है, और ये मुदाफ़ सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं। पहले तो इन्होंने सुलासी मुजरद के अबवाब आपको बयान किए मुदाफ़ के, अब मज़ीद फ़ी के आ गए हैं। ये बाब इफ़ाल आ गया जी, बाब इफ़ाल से ये बनेगी अमद्दा युमिद्दु इमदादन फ़हुवा मुमिद्दुन व उमिद्दा युमद्दु इमदादन फ़ज़ा का मुमद्दुन। तो ये गर्दान आपके बड़ी आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है, मुंह पे चढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आगे जी वो कहते हैं इस्तिमदाद औलिया, इस्तिमदाद, इस्तिमदाद, तो उसका मतलब ही ये होता है मदद चाहना, मदद चाह, इस्तिमदाद का मतलब होता है मदद चाहना। तो बाबे इस्तेफ़ाल पे अब मुदाफ़ की गर्दान ये देख ले जी, इस्तमद्दा यस्तमिद्दु इस्तिमदादन फ़वा मुस्तमिद्दुन, मदद चाहने वाले को कहेंगे मुस्तमिद्दुन। हम हैं मुस्तमिद और अल्लाह है मुस्तमद,
जिससे मदद चाहिए जाए, ठीक है। मुस्तमिद्दुन व उस्तमिद्दा युस्तमद्दु इस्तिमदादन फजा का मुस्तमद्दुन, ठीक है। ये गर्दान है जनाब, ये करें आप, आपके सामने है ये गर्दान बाबे इफ्तियाल पे अब आ गए हैं। और इमतद्दा यमतद्दु इम्तिदादन, ये गर्दान करें। इनफियाल पे जब आएंगे तो ये इनफियाल पे इंसद्दा, ये इंसदाद, वो कहते हैं ना इंसदाद दहशत गर्दी, यानी दहशत गर्दी को बंद करना। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत, वो अमूमी ख़बरों में ये लफ्ज़ बोलते हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत, ठीक है। मतलब ये कि दहशत गर्दी को बंद करने की अदालत, तो ये है वो भाई इंसदाद। इंसदाद ये मस्तर है, इंसदादुन, इंसदादुन मस्तर है बंद होना, और इसकी गर्दान होगी इंसद्दा यनसद्दु इंसदादन फवा मुनसद्दुन, ठीक है। आगे चूंकि ये लाजिम है ये बाप, ये होना इसके तर्जुमे के आखिर में आ रहा है ना, और जिस मस्तर के आखिर में होना होता है वो लाजिम होता है वो बाप, ये बात ज़हन में रखिएगा, वो बाप लाजिम होता है। और उमूमी तौर पे जिनके आखिर में होना आता है वो लाजिम होते हैं, ये भी बात ज़हन में रखिएगा। कई ऐसे मुतअद्दिद अब अफ़आल भी हैं कि जिनके मस्तर के आखिर में होना आता है लेकिन वो लाजिम नहीं होते, मुतअद्दी होते हैं। आगे भैया, बल्कि ये ऊपर ही ये देख लें, ऊपर ही ये दिया हुआ है, ये इम्तिदाद, इसका मतलब दराज होना, ठीक है। लेकिन ये बाब जो है ये बाब मुतअद्दी है, इसी वजह से इनके मजहूलों के आखिर में बेही का लफ्ज़ नहीं आया। आगे भैया ये मुफ़ाअला है, और इसको भी आपने करना है। मुहाब्बतुन, एक दूसरे के साथ दोस्ती करना, मुहाब्बा, मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत, मुहाब्बा, तो ये है हाब्बा युहाबु मुहाब्बतन फहुवा मुहाबुन वहुब्बा युहाबु मुहाब्बतन फजा का मुहाबुन। ये गर्दान आप पूरी करें अच्छे तरीके से। नीचे आ जाए भैया, ये नोट है, नोट भी देख ले, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, इंतहाई आसान। असल काम तो ये गर्दानें याद करनी है, आप गर्दानें करिएगा। ये बाब तफ़ाउल आ गया है, बाब तफ़ाउल की गर्दान आप करेंगे, गर्दान आपके सामने खुली है। और ये तहाबुन है, बाब तफ़ाउल के ऊपर, तहाबा या तहाबु तहाबन फ़हुवा मुतहाबुन, ठीक है जी। ये गर्दान देखें, आप देख रहे हैं, अच्छे तरीके से करिएगा। आगे बाब तफ़ईल आ गया है, ये गर्दान बड़ी अच्छी है और बड़ी इस्तेमाल होती है। ये तकरीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये तकरीर वो ही है भैया, ये बाब तफ़ईल के ऊपर, तकरीरुन साबित करना, किसी चीज़ को साबित करने को कहते हैं तकरीर। कर्रर युकर्रिरु तकरीरन फ़हुवा मुकर्रिर, वो अब देखे ना, वो मुकर्रिर साहब होते हैं जो स्टेज पर बैठ के अल्लामा साहब गुफ्तगू करते हैं, तो हम कहते हैं मुकर्रिर, मुकर्रिर, तो ये वो या मुकर्रिर यानी साबित करने वाला, मुकर्रिर साबित करने वाले को कहते हैं। और मुकर्रर, मुकर्रर जिसको साबित किया गया उसको कहते हैं मुकर्रर, ठीक है जी। तो ये नीचे सारी गर्दान आ रही है, ये करें आप अच्छे तरीके से। ये मुकर्ररुन आ गया है, ये सारे सीखे करें, ये गर्दान बड़ी इस्तेमाल होती है, ये आप ज़रूर करिएगा। बाब तफ़ाउल के ऊपर तकर्रुर, तफ़ाउल, तकर्रुरुन साबित कर, इसका मतलब भी साबित करना है। ये सिर्फ बाब तब्दील होता है लेकिन ये इसका तर्जुमा एक ही रहता है। ये तकर्रुर और इसकी गर्दान पर बनेगी तकर्रर या तकर्ररु तकर्रुरन फ़हुवा मुतकर्रिरुन, ठीक है जी। ये गर्दान आप करिएगा। आगे बढ़ें थोड़ा सा, ये आगे आप देख लें, ये नोट है, बाबे इफ़ाल इस्तिफ़ाल तफ़ईल और तफ़ईल, तफ़ईल और तफ़उल के अलावा बाकी तमाम अबवाब से इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़रब बज़ाहिर एक जैसे होते हैं, मगर असल में इसमें फ़ाइल बकसर ऐन और बाकी बफ़ताए ऐन होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि मुमतद्दुन, ये मुमतद्दुन और मुतहाबुन, इसमें फ़ाइल असल में मुमतादिदुन और मुतहाबिबुन, इसमें मफ़ूल और ज़रफ़ मुमतादादुन और मुतहाबाबुन,
ठीक है जी। तो कहते हैं ये असल में एक जैसे नज़र आते हैं ये, लेकिन एक जैसे होते नहीं हैं, ये आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये असल में ये मुख्तलिफ होते हैं। इस ये ऊपर बाब भी दिए हैं, तो इन बाबों में अगर कोई एक जैसा आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, ये हमारा सबक हो गया कंप्लीट। और आगे देखें, ये सबक नंबर 40 है। असल पढ़ने वाला सबक ये है। इंशाल्लाह ये अगले सबक में हम इसको देखेंगे। आगे मिसाल अजवफ़ नाकिस के कवायद शुरू हो रहे हैं, वो तो हम बड़े कमाल के निकालेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि बहुत इस्तेमाल है उसका। तो अभी के लिए यही है, गर्दानें थी। आज का सबक असल में गर्दानों का है। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप ये गर्दानें अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आप पूछेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर बार बार सवाल करें, मुझसे बार बार पूछें और पूछा करें। और बहरहाल आज का सबक तो कोई ऐसा पूछने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ गर्दाने का सबक है, और गर्दाने आपने सुनानी है, याद करनी है। थोड़ी थोड़ी करके एक एक गर्दान हर रोज़ की करते रहें। एक एक भी करेंगे तो चलो हफ्ता डेढ़ के अंदर ये गर्दानें हो ही जाएंगी ना इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आप मसरूफ़ लोग हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके भी करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।